हाउ डू ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस के क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आपके डिवाइस पे राइट हैंड साइड पे आई बटन दिया है, उसको क्लिक कर दीजिए और वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। बिकॉज जब तक आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर नहीं होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज अ एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चंस, दैट इज asexual reproduction takes place through budding in। asexual reproduction जो है वो budding के से किस में होती है? अमीबा में होती है, यीस्ट में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है या लेशमेनिया में होती है? योर आंसर इज यीस्ट। सो इट टेक्स प्लेस इन द यीस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is not a part of female reproductive system in the human beings? मैंने आपको चैप्टर में समझाया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। दैट इज नंबर 1 इज ओवरी, सेकंड यूट्रस, थर्ड इज वास डिफरेंस, फोर्थ इज फैलोपियन ट्यूब। सो आंसर इज वास डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेन्स। नाउ एंथर इज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग one? Number 1 sepals, number 2 ovules, number 3 carpel, number 4 pollen grains. So your answer is pollen grain. Anther is not having that is having the pollen grains. Now fourth question is, what are the advantages of sexual reproduction over the asexual reproduction? Sexual reproduction better क्यों है asexual reproduction? इसका आंसर है, in asexual reproduction the offsprings are almost identical to their parents. asexual reproduction में जो offspring होते हैं, जो next generation होती है, that is mostly different to their own parents because they have the same genes as their parents, because their genes are not different, no genetic deviation is there, so that's why they are resembling to their parents. But so much genetic variation is not possible in it. This is a disadvantage. It inhibits the further evolution of the organism. If we want the evolution in the organism, then the sexual reproduction is required, because in asexual reproduction no deviation is there. Now second difference is there, second main advantage is that in sexual reproduction the offspring although similar to their parents। ये नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है, जो चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते, आर नॉट आइडेंटिकल टू देम और टू अनदर, इट्स नॉट देयर, दे आर आल्सो रिजेंबलिंग। दिस इज बिकॉज द ऑफस्प्रिंग रिसीव सम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कुछ जीन्स अपने मदर के आ जाते हैं और कुछ जीन्स जो है वो अपने फादर के आ जाते हैं। Because of the mixing genes of mother and father in various combinations, all the offsprings have genetic variation in this way। इस तरह से जो offspring हैं उनमें जो है genetic variation हो जाती है, क्योंकि copulation के टाइम पे कि जीन्स का जो ट्रांसफर होना है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो वेरिएशन लेके आता है, किस कंडीशन पे, किस एनवायरनमेंट में वो कॉपुलेशन हुई है और किस तरह से वो जो पेरेंट्स से जो जीन्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए हैं। तो इट्स अ लिटिल बिट डेविएशन इज देयर। In this way, sexual reproduction leads to the great variety in population. In asexual reproduction, there is no variety of population because genes are same, but here the transfer of the genes from the parents to offspring is totally different. It depends on the environment, it depends on the condition, sometimes DNA variation also affected. So there is a variation and a lot of population is there in the sexual reproduction. So this is also an advantage of sexual reproduction on the asexual reproduction. This means that a species, either the animal or plant, can adapt quickly to the changes to its surrounding. उसके आसपास जो changes हो रहे हैं
उसको जो है ऑफस्प्रिंग जल्दी से उसको अडेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो बॉडी की शेप है, उसकी जो नेचर है, वो उसके अकॉर्डिंगली बन जाती है. दिस इज बिकॉज देयर आर ऑलवेज लाइकली टू बी सम इंडिविजुअल्स which are more suited to the changes than others, and these individuals will survive and reproduce themselves. और इस तरह से ये जो जनरेशन के आगे आगे जनरेटिव जो जनरेशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो जो है वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और वेराइटी इन द पॉपुलेशन इज still there. So these two differences there, these two advantages are there, which is sexual reproduction over the asexual reproduction. Now question number 5, that what are the functions performed by the testes in human beings? You know testes are present in the male human beings. So what are the functions of testes? ये मैंने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में भी बताया है, अब क्वेश्चन में एक तरह से रिवाइज हो जाएगा. That is there, the functions are there. Number 1, after the stage of adolescent, you know the person when it is adolescent period is there, maturity period is there, testes produce the male gametes in the human males which are called sperms. So testes क्या करती है उस टाइम पे, जो मेल गैमीट को सिक्रीट करती हैं, जिसे हम sperms भी कहते हैं. A hormone called testosterone is produced in the testes. टेस्टिस में ये भी एक फंक्शन है कि जो हार्मोन है, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल ह्यूमन बॉडी का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये भी जो है टेस्टिस में ही होता है. और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी जो है वो कंट्रोल करता है. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर? अब मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेंस्ट्रुएशन है ये फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है. इन द ओवम, अब ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो किस तरह से होती है? इन द ओवम या एग जिसे हम कहते हैं, does not get fertilized due to inavailability of the sperm in the female body. जब तक कि ये जो ओवम है या ओव्यूल है ये बॉडी में रहता है, फीमेल बॉडी में, और जब तक ये फर्टिलाइज नहीं होता, जब तक कि इसको स्पर्म नहीं मिलता है. And then the thick and softer inner lining of uterus is no longer needed and it break. तो वो जो यूट्रस की लाइनिंग है, क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उस टाइम पे ये जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करके क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with the blood cells vessels and dead ovum comes out of the vagina in the form of blood, which is called the menstruation. इसको हम menstruation भी कहते हैं. मीन्स ओवम के साथ वो ब्लीडिंग जो है, वो लेयर जो है यूट्रस की, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में अलॉन्ग विद द ओवम, जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है क्योंकि एब्सेंस है स्पर्म की, तो वो जो है वो बॉडी से वेजिना के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन occurs after the arrival of every 28 days. इसका जो सर्कल है हर 28 डेज में रिपीट होता है. And time period between ovulation and menstruation is about 14 days. और उसका जो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन का बीच का टाइमिंग है वो होता है 14 डेज. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर. ये क्वेश्चन आपको पेपर्स में आता होता है मोस्टली, एंड यू हैव टू रिवाइज बाय मेकिंग द डायग्राम योरसेल्फ एंड लेबलिंग. Remember this thing that unlabeled diagram is not accepted anywhere, so labeling should be there. Now see, I'm telling you the labeled diagram of longitudinal section of the flower. अब longitudinal section में हमें सारा कुछ दिखाई दे रहा है, stamen, pistils, sepals, ovules and petals. All are shown over there. सबसे पहले हम देखेंगे पेटल्स, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है. पेटल्स जो है वो कलरफुल होते हैं. इट इज कलरफुल, दीज आर कलरफुल बिकॉज दे अट्रैक्ट द वेरियस बर्ड्स विच आर गोइंग टू सेट ऑन इट फॉर द पॉलिनेशन. और उसके बाद हम देखेंगे इसमें सेपल्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं.
which are also present there. And then we will see the male and female reproductive organs of the flower. Male reproductive organ में आता है anther और filament, that is called stamen. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं. सो दिस इज द LS ऑफ फ्लावर. LS मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा कि आपने वहां पे लिखा होगा कि ड्रॉ द LS ऑफ द फ्लावर और द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर. तो आपने ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया है along with the label you have to draw it. Now we have come to the question number 8. Question number 8. What are the different methods of contraception? Answer of the question number 8 is the different methods of contraception are: number 1 is barrier method. In this method, condom, diaphragm, cervical caps are used. These prevent the entry of sperms in the female genital tract during the sexual intercourse. When sexual intercourse is there, at that time, if you want that the sperm should not enter the female body, at that time this precaution is used. Second is chemical method. In this method, a woman uses two kinds of pills, that is oral pills and the vaginal pills. दो तरह की pills वो use करती हैं. Oral pills are hormonal preparations. Oral pills जो होते हैं वो hormonal preparations होते हैं which suppress the release of ovum in the fallopian tube, जो कि ओवम को रोकते हैं fallopian tube में जो है वो पास होने के लिए. These are called oral contraceptives. इनको हम oral contraceptives भी कहते हैं. ये जो vaginal pills है ये creams होती हैं, ये spermicidal होती हैं. These chemicals in these spermicidals kills the sperms during the journey in the vaginal tract. ये क्या करते हैं कि जब sperm जो है वो vaginal tract की तरफ जा रहे होते हैं उस टाइम ये जो है उसको किल कर देती हैं. थर्ड मेथड है इंट्रायूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये जो होती हैं इंट्रायूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं. दीज आर कॉपर टी विच आर प्लेस्ड सेफली इन द यूट्रस बाय द स्किल्ड डॉक्टर. ये डॉक्टर्स के द्वारा जो यूट्रस में प्लेस कर दी जाती हैं, which also helps the sperms to enter the uterus so that the fertilization will be not there. Then surgical method. In this method, a small part of the vast difference of the male and fallopian tube of female is cut or tied by the surgeon. ये सर्जरी मेल और फीमेल दोनों में होती है. ये कट इसलिए की जाती है ताकि आगे जो है स्पर्म्स जो है वो आगे निकल ना सके और जाके जो है फीमेल में इसलिए की जाती है कि वहां पे एंटर ना हो सके. It is called vasectomy in males and tubectomy in the females. इसको डिफरेंट नेम दिया गया है. मेल में इसको वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल्स में जो है ट्यूबेक्टोमी होती है. तो ये डिफरेंट मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के. कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स कि पॉपुलेशन ना हो उसको रोकने के लिए, जो फर्टिलाइजेशन ना हो. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब हम इतनी देर से रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. अब हमने देखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स जिनकी बॉडी जो है वो मल्टी सेल से बनी होती है. हम देखेंगे कि इन दोनों में जो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट होते हैं. हम पहले देखेंगे फर्स्ट जो डिफरेंस है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and multicellular organism. Sexual reproduction takes place in multicellular organism. उसमें asexual reproduction होती है यूनिसेलुलर में और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. सेकेंड डिफरेंस, only one organism is required in this method. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होती है. थर्ड, नो स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूनिसेलुलर में कोई स्पेशल सेल्स नहीं चाहिए होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मल्टीसेलुलर में होती है उसमें जो है पर्टिकुलर सेल्स आर रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट डिफरेंस, नो स्पेशल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होते, जबकि मल्टीसेलुलर स्पेशल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्शन.
located on the fixed position in the body. एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक फिक्स्ड पार्ट में जगह पे जो है वो दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन में. 10th क्वेश्चन इज हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को, ताकि पॉपुलेशन की जो स्पीशीज हमारे नहीं मिल रही हैं उसकी पॉपुलेशन फिक्स रहे. वो किस तरह से हेल्प करता है? तो इसका आंसर है द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज by preventing them from getting wiped out during the adverse conditions. That is the thing, जो वेरियस कंडीशन उस टाइम पे वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन के टाइम पे, वो हेल्प करती हैं इस चीज में, ताकि वो एडवर्स कंडीशन में भी ये स्पीशीज जो हैं अपनी जो है वाइप आउट ना हो सके, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे. रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प्स टू जनरेट कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल्स which are suited to the particular environment. अब आपको पता है जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, तो इस कॉपी को प्रोवाइड करने में भी रिप्रोडक्शन हेल्प करती है और वो सूटेड करती है विच आर सूटेड टू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट. वो बोले ऑफस्प्रिंग देंगे जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को सूट करते हैं. सो इस तरह से रिप्रोडक्शन हेल्प हो जाती है. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. अब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो पढ़ लिए वेरियस. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू वी हैव टू अडॉप्ट दैट मेथड्स. सो आंसर इज रीजन इज दैट नंबर 1 द मेन मेथड रीजन जो है दैट इज द टू कंट्रोल द बर्थ रेट एंड प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन मेथड को नहीं यूज किया जाए तो क्या होगा, ये इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को नहीं यूज किया जाए तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी एंड देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ इट एंड इट विल बी very adverse effect on the environment. Second, to reduce the adverse effects on the mother's body due to frequent pregnancy. अगर ये methods नहीं अप्लाई होते तो मदर की बॉडी इतनी प्रिपेयर नहीं होती है कि that again and again she is going to conceive and she is going to be pregnant and she is delivering the baby. So her body is very weak and the delivered baby will be also weak. So these methods, contraceptive methods, are helpful for that also. And the third point, the last point is to provide the safety from sexual transmitted disease. When sexual transmission is there, at that time the various diseases can be transmitted from the parents to the offspring. So to prevent that, these methods are helpful. Thank you.